بھائی آپ چھوڑیے نا، کیا کر رہے ہیں؟ کوئی یہ معزز معاشرہ ایسے کرتا ہے؟ تو مان لو کہ سب سے معزز معاشرہ ہوتا ہے. جگہ دے دیں، آپ ہر چیز خراب نہ کریں. مطلب ہم ذرا معزز معاشرہ ہے نا، تو آپ جگہ دیں گے کسی کو یا نہیں؟ شادی کے حق میں سیاسی جماعت شامل ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ. میں ہوں عیسیٰ نقوی. اس وقت ملک کے عدالتی اور سیاسی منظرنامے پر ہلچل نظر آتی ہے. لگتا یہ ہے کہ حکومت جو آبجیکٹیوز چاہتی تھی 26ویں آئینی ترمیم سے وہ اچیو نہیں ہو پائی، یا پھر کم از کم مکمل طور پر ان مقاصد کو حاصل نہیں کیا جا سکا. اس لیے ابھی آئینی ترمیم، ایک اور آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس پروگرام میں آج مجھے جوائن کر رہے ہیں میاں جاوید لطیف، رہنما مسلم لیگ نواز. ان سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا آپ کے سامنے منظرنامہ واضح کر دوں. اس ویکنڈ پر سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ رخصت ہو چکے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ملک کے منصف اعلیٰ کی کرسی پر اب جسٹس یحییٰ آفریدی براجمان ہیں. چیف جسٹس بنتے ہی انہوں نے جو انتظامی فیصلے لیے، حکومت اس پر پینک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریسٹور کر دیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی وہ کمیٹی جس کو غیر فعال کر دیا تھا امینڈمنٹ آرڈیننس آنے کے بعد. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے کہ جسٹس منیب اختر کے اوپر 11 الزام لگا کر یہ کہا گیا کہ ان کا لہجہ درست ہے، ان میں فلاں خرابی ہے، ان میں فلاں خرابی ہے، لہٰذا ان کو اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جسٹس امین الدین خان کو اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا تھا. لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی نے آتے ہی یہ فیصلہ کیا کہ فل کورٹ اجلاس فی الفور بلایا جائے گا. فل کورٹ میٹنگ آج ہو چکی، اور اس میں حیران کن طور پر جسٹس منصور علی شاہ، جن کے حوالے سے حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ ان کو گھر چلے جانا چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور جسٹس منیب اختر ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے. نہ صرف یہ کہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، بلکہ فل کورٹ اجلاس میں سعودی عرب سے ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے شرکت کی. جسٹس منیب اختر کو جو نکالا گیا تھا کمیٹی سے، واپس ان کو جسٹس یحییٰ آفریدی کمیٹی میں لے آئے ہیں. اور اب حکومتی سرکلز یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان دو جج صاحبان کو کسی بھی صورت آئینی بینچز میں نہیں ہونا چاہیے. سینیورٹی شروع ہوگی جسٹس یحییٰ آفریدی کے بعد، لیکن یہ نہ آئین میں کہیں موجود ہے نہ قانون میں کہیں موجود ہے. بیرسٹر عقیل نے سینیورٹی کے حوالے سے حالیہ دنوں میں جو ایک انٹرویو دیا، میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں بیرسٹر عقیل نے کیا کہا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کیونکہ 3 سینئر موسٹ ججز کنسیڈر ہوئے تھے، ان میں سے ایک ایز چیف جسٹس آف پاکستان ریکمینڈ ہوئے ہیں، یہ عین ممکن ہے کہ اس کے بعد اس کمپوزیشن کے اگلے والے جو سینئر لاٹ ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے اور اس میں سے کسی کو جو ہے آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سینیورٹی جو شروع ہوتی ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کے بعد والی، اس میں جسٹس امین الدین صاحب ہیں، ان کے بعد سینئر موسٹ جو کہ چوتھے اس کے بعد اور بھی ہیں، 2-3 ہیں. اوبویسلی سینیورٹی کی اگر وہ اس پورے اسٹیپس میں صاحب ہیں، جی بالکل ہیں، بالکل ہیں، ان تینوں میں سے بھی کنسیڈر ہو سکتا ہے آئینی بینچ کے اندر. جی آئینی بینچ اوپر والے 2 ہیں، انہیں آپ کنسیڈر نہیں کریں گے؟ جسٹس منیب اختر کو جو سینئر پیونی جج ہیں جسٹس منصور وہ علی بھی شاہ، کنسیڈر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ریسنٹلی کیونکہ کنسیڈر ہوئے ہیں ایز چیف جسٹس آف پاکستان، تو یہ کوئی اسٹرکٹو سینسو میں اس کی وہ ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں کو ہی بنانا ہے، یا کوئی ایسا پرنسپل ہے کہ ایک آپ نے چیف جسٹس لے لیا ان میں سے اور اس کے بعد پھر آپ انہی دونوں پہ باؤنڈ ہو گئے. ہم بالکل باؤنڈ نہیں ہیں. ایک اور اہم حکومتی وزیر رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ آغاز کے جو ٹاپ 3 ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، بشمول چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کو آئینی بینچ میں موجود نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے کیا منطق دی، سنیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سینئر موسٹ ججز اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب. یہ پچھلی جو کنٹروورسی چلی ہے اور جس طرح سے چلی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ خود بھی اس بات کو پسند کریں گے انہیں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو ہے وہ سربراہ بنایا جائے. اس کی کنسیڈریشن جو ہے، ویسے تو یہ اختیار تو جوڈیشل کمیشن کا ہے، لیکن میری ایک انڈیویجول کی رائے یہ ضرور ہے کہ یہ کنسیڈریشن ان کے بعد سے شروع ہونی چاہیے. اس کے اثرات جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اوپر نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نے
उन्हीं केसेस को सुनना है और उन्हीं के फैसले करने हैं जिनके ऊपर दोबारा फिर इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू, इस किस्म के तबसरे, इस किस्म के प्रोग्राम होने हैं। जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो पोजीशन है उसमें इन तीनों को लाया जा सकता है। मैं अपने तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि जिस किस्म के मामलात वहाँ पे जो है वो ज़ेरे फैसला आने हैं, तो अगर ये ना हों तो ज़्यादा बेहतर है। सियासी और अदालती मंजरनामे पर गुफ्तगू करेंगे। मियां जावेद लतीफ साहब, वेलकम टू द शो। मुझे ये बताइएगा कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं कि इन 3 जजेस को आईनी बेंच में नहीं होना चाहिए, ये उनकी जाती राय है या फिर पार्टी और पार्टी के दीगर रहनुमा इस राय से जो है वो इत्तफाक करते हैं? नहीं, राय तो मेरा ख्याल उनकी जाती होगी, क्योंकि पार्टी में तो ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि तेरा जज मेरा जज इससे बाहर आना चाहिए। और खुदा के लिए ये एक अदारा है, वहाँ बैठे जो मोहतरम शख्सियात हैं उनको भी अपने पे या अपने फैसलों पे या अपनी गुफ्तार पे ये सारी नज़र डालनी चाहिए ताकि उन पे कोई उंगली ना उठ सके। मगर बदकिस्मती ये है कि जिस मकसद के लिए आईनी तरमीम लाई गई थी और वो ख़ास तौर पर जो उस मसवदे में चीज़ थी कि आईनी अदालत, और उसका जवाब ये था कि 58,000 केसेस पेंडिंग हैं और आप 2 साल से आइन की तशरीह कर रहे हैं या आइन को रीराइट कर रहे हैं, और आए रोज़ कोई ना कोई केसेस इस तरह के अदालतों के सामने आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आईनी अदालत बन जाती तो ये बहस आज जो हो रही है कम अज़ कम ये ना हो सकती। उस वक्त ये कहा जाता था कि काजी फाइज ईसा साहब को रखने के लिए या उनको उस अदालत का सरबराह बनाने के लिए ये सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा है, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। कुछ आवाज़ें ऐसी थीं। तो भाई काजी फाइज ईसा साहब तो ना रहे, आपका यही डिमांड थी। और फिर आप जो आईनी मसवदा पेश किया गया था फजल रहमान साहब के मसवदे से पहले, तो उस पर तो पीटीआई खुद काम करती रही है या बाकी लोग या बार रूम्स के बहुत से जो लीडरशिप है वो काम करती रही है, कंसेंसस था उस पर। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ तो गलत है, वो कर रहे हो तो ठीक है, या वो जो बात कहें वो गलत है, मैं जो बात कहूँ वो दुरुस्त है। इस रवैये से भी हमें परहेज करना चाहिए। पाकिस्तान जिस गर्दाव में फंसा हुआ है और जो अदारे पाकिस्तान के तमाम अदारों में बैठी शख्सियात जो हैं उनके अमल से पाकिस्तान नहीं दुनिया में पाकिस्तान के अदारों की रेट रैंकिंग जो है वो बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। लेकिन ये जो आईनी मुसव्वदा जो जी जावेद लतीफ साहब, लेकिन ये जो आईनी मुसव्वदा पास हुआ है, क्या आपने कहा 58,000 केसेस की पेंडेंसी है, जो आईनी कोर्ट आप बनाना चाह रहे थे जिसके बाद अब आपने फैसला कर लिया कि आईनी बेंच बनाना है, वो तो तकरीबन 150 से 200 के करीब मुकदमात हैं, उसी में उलझे हुए थे। लेकिन आप मुझे स्ट्रिक्टली ये बताएं कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, आपकी पार्टी के कुछ रहनुमा ट्वीट्स कर रहे हैं, आपकी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से ये ट्वीट्स हो रहे हैं कि इनको मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाना चाहिए क्योंकि ये सुपरसीड हो चुके हैं। क्या ये पार्टी की लाइन भी है? आप भी यही राय रखते हैं? ना ये पार्टी की लाइन है और ना ही किसी को राय जनी का इख्तियार है। आइन खुद बोलता है, आइन खुद रास्ता बनाता है। मगर बदकिस्मती ये है कि जो दोनों शख्सियात का जिनका आपने ज़िक्र किया, मेरे लिए दोनों ही बड़े काबिल एहतराम हैं, मगर उसमें से एक इंतहाई मोहतरम जस्टिस साहब जो हैं, उनके किए गए फैसलों के बाद क्या आप ये राय नहीं दे सकते? जबकि ये एक हकीकत है और दुनिया में ये असूल है कि जो जजमेंट आ जाए उस पर आप राय जनी कर सकते हैं। तो जो उनके पिछले फैसले किए हुए हैं उस पर तो कम से कम हर बंदा बोल सकता है, अपनी राय दे सकता है। तो मैं समझता हूँ कि वो देख लें उनके दिए हुए फैसले क्या कह रहे हैं, क्या आइन कानून
के मुताबिक जो दिए गए उन्होंने फैसले दिए गए हैं उनके मुताबिक आप फैसला कर लें, फिर आप जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जिक्र कर लें या किसी और इंतहाई मोहतरम जज साहब का जिक्र कर लें या साकब निसार साहब का, बंदयाल साहब का, दीगर साहबान का आप जिक्र कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खुदा के लिए वो मेरी साइड हो, आपकी साइड हो, कोई और साइड हो, ये तेरा मेरा जज जो है, इससे खुदा के लिए कौम पर रहम किया जाए और हर शख्सियत को भी तेरा मेरा जज वाला अमल से जाहिर करना चाहिए कि कोई तेरा मेरा नहीं है। लेकिन जावेद लतीफ साहब, ये तेरा मेरा जज वाला मामला तो अब हुकूमत करती हुई नजर आ रही है। वो मुतादिद प्रोग्रामों में आपके कॉलीग्स, आपकी पार्टी के लीडर्स बैठकर ये कह रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को होना चाहिए या जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बाद किसी को होना चाहिए, पहले वाले जजेस में से कोई नहीं होना चाहिए। और इवन जिनको आपने गैर मुतनाज़ा कहकर ये कहा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी के लायक हैं क्योंकि वो किसी ग्रुप का, किसी लॉबी का हिस्सा नहीं है, उनसे भी कहा जा रहा है कि आप ना बने। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आईनी बेंच आप अपने पास ना रखें, इसकी क्या वजह है? ये एक रवायत बनती जा रही है, एक रवैया पनप रहा है कि आपको याद होगा कि कहते थे कि काजी फायज ईसा साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए, काजी फायज ईसा साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए। आपको याद होगा कि एक साइड से ये कैंपेन चलाई गई थी, मगर बदकिस्मती ये है कि अगर दूसरी साइड से फिर उसी तरह की राय आए तो उसको तो हम नोटिस करते हैं, मगर पहले जो कुछ होता है उसको हम नोटिस नहीं करते। फिर इसी तरह मुझे ये कोई बता दे कि क्या साकब निसार साहब ने जो फैसले दिए थे 2017 में किसके कहने पे दिए थे? फिर साकब निसार ने आज जो एक कैदी हैं अडयाला जेल में, उनको सादक और अमीन का सर्टिफिकेट क्यों दिया गया था, जबकि इंटेलिजेंस अदारे जो थे वो पाकिस्तान के, उनके इल्म में चीज़ें नहीं थी और जो सादक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाले थे वो वक्त की अपनी ज़रूरत को मलहूज़े खातर रख रहे थे, मगर आइन कानून को पेश नज़र नहीं रख रहे थे। फिर आप ये देखें कि उस वक्त एक 2/3 अक्सरियत रखने वाले प्राइम मिनिस्टर को महज इसलिए हटा दिया गया बगैर किसी वजह के, क्योंकि ज़रूरत थी उनको हटा के किसी और को लाना था। अगर इस तरह का जस्टिस होगा तो फिर मेरे भाई कौन मानेगा या कौन फिर बातें नहीं करेगा जो आप कोट करके मुझे बता रहे हैं? सही। मुझे क्विक ब्रेक पर जाना है। जावेद लतीफ साहब मेरे साथ रहिएगा। हुकूमत को कैसा जस्टिस चाहिए, हुकूमत को कैसा जज चाहिए, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ मेरे साथ मौजूद हैं। जावेद लतीफ साहब, पहले सेगमेंट में जो मैं आपकी गुफ्तगू से समझा हूं उससे मुझे तो यही समझ आई है कि आप ये कह रहे हैं कि आपको या आपकी जमात की पॉलिसी के एतबार से किसी को ये एतराज नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच के सरबराह हों। नहीं नकवी साहब, मैं आपको ये शायद कोशिश कर रहा था बाबर करवाने की कि हुकूमत या अपोजिशन का काम नहीं होता कि कौन से जस्टिस होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। मैंने तो ये एतराज़ किया है कि माजी के दिए गए फैसलों से पाकिस्तान आज इस गर्दाब में फंसा हुआ है। माजी के दिए गए फैसले अदलिया की जानिब से जो थे उनकी वजह से हुकूमतें टूटती रहीं और मार्शल लॉ आते रहे और उनको जस्टिफाई भी अदालतें करती रहीं। ये कोई पाकिस्तान के लिए दुनिया में कोई अच्छा साइन नहीं है और ना हमारे लिए कोई इससे कोई बेहतरी आई है। आज भी अगर उसी रवैये को या उन्हीं चीज़ों को सामने रख के आप देखें ना कि जिस तरह जो मसवदे पे आप बात कर रहे थे पहले भी, या जो आईनी तरमीम 26वीं या 27वीं का जिक्र कर रहे हैं, ये कोई ज़रूरत थी 26वीं तरमीम लाने की? वजह ये बनी कि जब आप अदलिया जो है आइन को रीराइट करना शुरू कर दे। जस्टिस बंदयाल साहब को आप देखें, गुड टू सी यू कहने वाले को, फिर आप जस्टिस बंदयाल साहब का वो भी जजमेंट आप देख लें, उसमें इंतहाई मोहतरम मुनीब अख्तर साहब जस्टिस जो हैं वो भी मौजूद थे, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब मौजूद थे,
जब कहा गया पंजाब में अदम एतमाद के वक्त कि ये वोट कास्ट हो सकेगा तो काउंट भी नहीं होगा और डी सीट भी हो जाएंगे, अगले दिन दूसरी जरूरत पड़ गई तो उसी अदम एतमाद को नया जजमेंट दे दी गई और उन्हीं 3 साहिबान ने दी जो पहले एक अपनी जजमेंट दे चुके थे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि क्या लोग इसको भुला पाएंगे? नहीं भुला पाएंगे। सही, यानी कि एतराज़ आपके जहन में भी कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन जाहिर है कि आला अदलिया के मुतल्लिक उस एतराज़ को वाज़ेह अल्फाज में रखना शायद थोड़ा सा मुश्किल दरपेश आ जाती है इसमें। मैं आपकी गुफ्तगू से तो यही अखज़ कर पाया हूँ कि एतराज़ बहरहाल 2 सीनियर तरीन जजेस के ऊपर मौजूद है। तो मुझे ये बताइए कि जो जस्टिस याह्या अफरीदी ने अभी तक जो इक़दामात लिए हैं, आप कंफर्टेबल हैं, हुकूमत कंफर्टेबल है कि नए चीफ जस्टिस ने आने के बाद इन 2 जज साहिबान को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी में वापस ले लिया, इसी तरीके से फुल कोर्ट इजलास बुला लिया, जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद हैं और मुमकिन तौर पर आईनी बेंच के सरबराह भी बन सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं अभी 27वीं आईनी तरमीम आएगी और रास्ता रोकना ही रोकना है? नहीं, ये अगर किसी की सोच भी है कि किसी का रास्ता रोकना है, किसी को लाना है, तो ये माजी के तजर्बे तमाम अदारों के बता रहे हैं कि ये तजर्बा रियासत के लिए भी अच्छा नहीं होता और जो ये ख्वाहिश करते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं होता। मगर बात करने वाली ये है कि मुझे ये तो समझा दिया जाए ना, जो मैं समझना चाहता हूं, जो मेरी आज तक समझ में नहीं आ रहा, कि भाई आप ये बात क्यों नहीं करते या क्यों नहीं ये की जाती कि भाई अदलिया के फैसलों से, किए गए फैसलों से कोई पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ सकी है? नहीं आई। तो फिर अगर आईनी अदालतें या आइन के मुताबिक अदालतें फैसले करें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती कि मैं लाया हूं या कोई लाया है, बल्कि उन्होंने क्योंकि आइन कानून के मुताबिक फैसले देने हैं तो हुकूमत भी कंफर्टेबल होगी और अपोजिशन भी उससे कंफर्टेबल होगी, कोई भी तकलीफ का महसूस नहीं करेगा क्योंकि आइन कानून के मुताबिक फैसले हो रहे होंगे। नहीं तो आपको और जब लगता है आप भले तो आपको लगता है कि जो 2 सीनियर जज साहिबान हैं वो आइन के मुताबिक फैसले नहीं देंगे, रीराइट करेंगे? मैं कौन होता हूं भाई ये प्रिज्यूम करने का? मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूं, मैंने जो माजी में देखा है उसकी बात कर रहा हूं। अगले वक्त के लिए दुआ गो हूं कि आइन कानून के मुताबिक फैसले हो ताकि किसी को शिकायत ना हो। सही। आप मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम किसी सूरत नहीं आने देंगे। आप लोगों का बड़ा अच्छा दोस्ताना रहा है, एक बड़ी सियासी दोस्ती है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान। ये जो मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त अपोजिशन के साथ खड़े नजर आते हैं, दरार आ गई उस दोस्ती में और मौलाना को मना लेंगे 27वीं आईनी तरमीम के लिए या नहीं? देखें, बात यह है कि अभी तो 27वीं आईनी तरमीम लाने का कोई मसवदा भी सामने नहीं आया। अगर कोई मसवदा सामने आएगा, मौलाना साहब से भी बात होगी, दीगर अहबाब से भी बात की जानी चाहिए, यहाँ तक कि जो पीटीआई के हाउस में लोग हैं उनसे भी बात की जानी चाहिए ताकि जो कंसेंसस से तरमीम आएगी उसी को लोग अहमियत देंगे, उसी को मुकद्दस जानेंगे। लास्ट क्वेश्चन जावेद लतीफ साहब, आप बार बार ये बात कहते रहे गुज़िश्ता 2.5 साल में कि इमरान खान की सहूलत कारी जारी है, अदलिया से, हाई कोर्ट से, इदारों से, क्या ये सहूलत कारी अभी भी जारी है? सहूलत कारी उसी तरह मौजूद है और जब ये कहा गया था कि जनरल फैज़ हमीद पकड़े गए हैं तो उससे अब सहूलत कारी ख़त्म हो जाएगी। सहूलत कारी मांद पड़ी थी, कमज़ोर हुई थी, मगर सहूलतकारी खत्म नहीं हुई। अच्छा, आज भी सहूलतकारी मौजूद है। तमाम अदारों में बैठे कुछ अशखास की जानिब से, कुछ पॉलिसी साजों की जानिब से भी, और वो सर चढ़ के बोल रही है वो सहूलतकारी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद लतीफ हमारे साथ मौजूद थे। वो जमात जो कहती है कि हमारे ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं, जितने मजालिम हमारे ऊपर हुए आज तक नहीं हुए, जावेद लतीफ साहब का मौक़िफ़ यह है कि उनकी सहूलतकारी अब भी जारी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। इमरान वसीम साहब, साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और फुल कोर्ट मीटिंग का अहवाल आपके सामने रखेंगे। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रिपोर्टर्स साकिब बशीर और इमरान वसीम साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदालती मामलात कवर करते हैं। इन दोनों साहिबान से बात करेंगे कि हुकूमत वक्त से जो मैकेनिक था 26वीं आईनी तरमीम का, उससे कहीं कोई संगीन गलती हो गई है। हुकूमत को अब आफ्टर थॉट्स आ रही हैं कि नहीं, 26वीं काफ़ी नहीं, 27वीं आईनी तरमीम भी लाना पड़ेगी। जिन जजेस का रास्ता हुकूमत रोकना चाहती थी, बबागे दोहल कहती थी कि जो 2 जजेस हैं वो मुतनाज़ा हैं, जो सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इनको ना चीफ जस्टिस बनाना है और ना ही इनको आईनी बेंच की सरबराही सौंपनी है। लेकिन जो आइन बनाया गया, जो कानून मौजूद है, जो मातहत लेजिस्लेशन मौजूद है, उसमें ऐसी कहीं कोई कदगन मौजूद नहीं। ना तो इन दोनों ने इस्तीफे दिए और ना ही इनका गेम जो है वो ख़त्म हुई है इन अहम तरीन अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। आज पहला फुल कोर्ट इजलास जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो पहले आगाज़ के इंतज़ामी फैसले लिए वो भी हुकूमत के लिए परेशान कुन लग रहे हैं। पैनिक आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। साकिब बशीर साहब, हुकूमत जो है उसने जो जिस किस्म की वाइब्स हमें आगाज़ में ही आ गई हैं, हुकूमत क्यों नाला है? हुकूमत क्यों चाहती है कि जो 2 सीनियर जजेस हैं उनको अब इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए? ऐसे लग रहा है कि जैसे प्लान ये था कि जस्टिस याया अफरीदी जो है वो रिज़ाइन कर देंगे और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो डायरेक्ट चीफ जस्टिस आ जाएंगे, तो वो प्लान तो हुआ नहीं है। और उसके बाद सेकंड जो प्लान लग रहा था वो यही था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब, जिस तरह कल अगरचे पंजाब की जो हिना परवेज़ भट्ट हैं उनका कोई वो स्टेटस तो नहीं है, लेकिन इस किस्म की जब ट्वीट्स होती हैं या इस किस्म की बात कहीं पे की जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई एक प्रोपेगेंडा या पर्पस कुछ ना कुछ होता है। तो ये एक जो है वो बावर कराने की फिर एक खास हम ट्रेंड जो है वो देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि नहीं वो सुपरसीड हो गए हैं और उनको घर चला जाना चाहिए और रिज़ाइन कर देना चाहिए। हालांकि एक जज जो है वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट का उसने आइन पर हलफ लिया हुआ है, वो कोई ऐसा रूटीन का एक नहीं है, उसने आइन पर हलफ लिया हुआ है, वो तब भी घर जा सकता है जब जिसको मिसकंडक्ट या किसी मामले में भेजा जा सकता है। हुकूमत की जो पैनिक है वो नजर आ रही है। राना सनाउल्लाह, मुसद्दिक मलिक, रात तो मैं सुन रहा था तो उन्होंने एक जज को कह रहे हैं, 2 जजेस के कह रहे हैं कि वो तो मुतनाज़ा हो गए, उनको आईनी बेंचेस में नहीं आना चाहिए, और एक जज जो है वो चीफ जस्टिस की वो मुतनाज़ा हो ना जाए, वो भी आईनी बेंच में ना आए। तो ये इस किस्म की जो सोच है मुझे समझ नहीं आ रही। यही बात जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हिट कर रही है कि आप अपनी मर्जी का आईनी बेंच बनाना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी का आईनी बेंच का हेड बनाना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी के केसेस आप लगवाना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जो मामला चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हुकूमत अब 27वीं तरमीम का सोच रही है कि हम जो है 26वीं में कोई गलतियां रह गई हैं, कोई बेहतरी करना रह गया है तो वो हम बेहतरी कर लेंगे। मेरा ख्याल है चीजें जो है वो उस तरह होंगी नहीं। अब जो है वो उनको वो वाला प्यार मोहब्बत जो 25 अक्टूबर तक वो कह रहे थे कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा थे, तो वो जो मौजूद हैं तो उन्होंने बिल्कुल हर मामले पे खामोशी रखी, बल्कि एक तासुर मिलता रहा कि वहां से सहूलतकारी भी हो रही है, जो है वो पार्लियामान को या हुकूमत को सहूलतकारी भी मिल रही है। तो उस वो तासुर अब नहीं होगा। अब जो है वो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ देखेगी। और जो अभी जो नए चीफ जस्टिस बने हैं उन्होंने पहली जो स्पीच है उसमें बड़ा क्लियर मैसेज दिया है, उस मैसेज को हुकूमत को समझ लेना चाहिए। और मैं उसको दोनों एंगल से देखता हूं कि वो कह रहे हैं कि जो इदारों के अंदर इख्तियारात की तकसीम है उसमें कहीं ना कहीं वो जो प्रवेल करेगी। अब वो हो सकता है कि अपना जो जुडिशरी का कह रहे हो कि जुडिशरी भी अपने इख्तियारात से बाहर नहीं जाएगी, लेकिन जुडिशरी के इख्तियारात को भी आप जो है वो कम नहीं कर सकेंगे। सही। इमरान वसीम साहब, क्या कहीं संगीन गलती आपको नहीं लगता कि 26वीं आईनी तरमीम में हो गई? अब जो जुडिशल कमीशन बनाया है, जिस जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच बनाना है, उसकी कंपोजिशन यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 3 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद आईनी बेंच का सरबरा। अभी आईनी बेंच बना नहीं, उसका सरबरा जो है वो ऑलरेडी उस जुडिशल कमीशन में होना चाहिए जिसने आईनी बेंच जो है वो बनाना है। फिर उसके बाद उसमें फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, एक जो नुमाइंदे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, फिर 4 मेंबरान जो हैं वो 2 सेनेट से, 2 कौमी असम्बली से, और फिर एक खातून या एक अकलियती जो है वो रुकन, वो इसका जिसको नॉमिनेट गवर्नमेंट ने या स्पीकर ने करना है। लेकिन इस सारे मामले में हुकूमत को ये कि आफ्टर थॉट्स आ क्यों रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम लानी चाहिए? ये रिक्वेस्ट हो क्यों रही हैं कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो रिक्यूज़ कर दें, वो माजरत कर लें और जस्टिस याया आफरीदी भी माजरत कर लें सरबराही से? देखें ईसा, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात हैं आपके एक सवाल में। ये जो 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है ना, जब ये 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा मंजर आम पे आया था तो ये एक बहुत बड़ा एक पैकेज था। उसमें मिलिट्री कोर्ट्स भी थी, उसमें
मतलब जितनी सियासी जमातों ने 26वीं आईनी तरमीम में आप 14-15 सितंबर वाले मुसव्वदे की बात कर रहे हैं, नॉट द वन जो पास हुआ। मैं और तरीके से बयान कर देता हूँ। ये जो 26वीं आईनी तरमीम में जितनी सियासी जमातों ने अपना हिस्सा वोट के जरिए डाला है, उन तमाम सियासी जमातों के कोई ना कोई डिमांड्स हैं। डिमांड्स ये हैं कि जैसे MQM कहती है कि जो बल्दियाती जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी वजाहत की जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि जो इस वक्त राइज मुख्तलिफ सूबों में जो बल्दियाती लोकल बॉडी सिस्टम का जो निज़ाम है वो इतना स्ट्रेंथन नहीं है जितना कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होना चाहिए। तो MQM का कहा गया था कि अभी तो पहली ट्रांच में हम ये जो जुडिशल पैकेज है इसको मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जो सियासी जमातों के जो भी डिमांड्स हैं उनको उसमें 27वीं तरमीम में पूरा किया जाएगा। यानी जो 26वीं तरमीम का इब्तदाई मसवदा था 14 सितंबर वाला, उस पर यह फैसला हुआ था कि पहले मरले में फिर जो अदालत से रिफॉर्म्स वाली जो अमेंडमेंट्स हैं उनको करवा लेते हैं और फिर मरलावार बाकी तरमीम भी की जाएंगी। उसमें 27वीं आईनी तरमीम की भी बात की गई थी। उसमें 28वीं जितनी मुश्किल से हुई है, 27वीं के लिए नंबर कहाँ से पूरा होगा? इमरान वसीम साहब, ये हुकूमत, मेरा स्पेसिफिक सवाल ये है कि आखिर क्यों चाहती है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो सरबराही करें आईनी बेंच की? ऐसी क्या उम्मीद है कि उन्हीं को दी जानी चाहिए? और वो हैं जिन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल भी ना किया जाए। देखें, जुडिशल कमीशन में फैसला होना है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह का या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के। वैसे तो वहाँ पे बेंचेस बनने हैं, जब बेंचेस बनेंगे तो उसका जो सीनियर मोस्ट होगा वो उस बेंच को प्रिजाइड करेगा। लेकिन जुडिशल कमीशन के जरिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे, हुकूमत की ख्वाहिश जो मर्जी हो, हुकूमत चाहती है कि अमीनुद्दीन खान बने, बेंच अगर 2 बनते हैं तो दूसरे बेंच का सरबराह किसी और को बनाना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट से जजेस जो हैं वो हुकूमत के साथ ना आए, हुकूमत की ख्वाहिश के साथ ना आए। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ख्वाहिश है क्यों, यही तो सवाल है। मुझे नहीं पता कि उनकी ख्वाहिश क्या हो सकती है। इजहार किया है, उन्होंने बार बार कहा है, उन्होंने कहा है कि जस्टिस याहिया आफरीदी को भी नहीं होना चाहिए आईनी बेंचेस में, जस्टिस मुनीब अख्तर को भी नहीं होना चाहिए, जस्टिस मंसूर अली शाह को भी नहीं होना चाहिए, सीनियरिटी याहिया आफरीदी साहब के बाद शुरू होनी चाहिए। ये ख्वाहिश क्यों है? देखें, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये ख्वाहिश हुकूमत की क्यों है, इस हवाले से जारी बात है, मैं तो जवाब नहीं दे सकता। मैं तो जो एनालिसिस आपके सामने रख सकता हूं जिस मकसद के लिए आपने मुझे बुलाया है, मैं तो ये आपसे कह रहा हूं कि जुडिशल कमीशन में चलें आप बात कर लें। जी नहीं जी, मैं इसका जवाब देता हूं। असल में मसला बड़ा सिंपल और सादा सा है। जस्टिस मंसूर अली शाह को 12 जुलाई का फैसला क्योंकि हुकूमत के खिलाफ था और हुकूमत की मुखालिफ पार्टी के हक में था, उनको इसलिए चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। आप ये जिस दिन भी मीटिंग मिनट्स आ गए, क्योंकि इन कैमरा था, मीटिंग मिनट्स तो आने नहीं, रीजनिंग तो है नहीं, मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब का आपने पूरा जो है वो बैकग्राउंड देखना है और 1-1.5 घंटे में आपने बैठ कर कहा कि चलें जी हमने 2 सुपरसीड करके तीसरे को बना दिया। और जो अप्रोच लगी है गवर्नमेंट की, वो अप्रोच बड़ी सिंपल और सादा सी है कि जो बंदा हमारे फेवर में होगा, जो हमारी फेवर में बात करेगा, वो जो है वो प्रमोट होगा, वही आगे आएगा, वही जो है वो उसी को हम सपोर्ट करेंगे। और जस्टिस अमीरुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो मखसूस नशिस्तों के केस में एक फैसला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का 8 जजेस का फैसला गैर आईनी है, उसको ना माना जाए, ठीक है, वो बाइंडिंग नहीं है या जो भी है। उसके बाद जस्टिस काजी फाइसा ने भी अपना हिस्सा डाला। तो सिंपल और सादा सा है कि क्योंकि उनको लग रहा है हुकूमत को कि ये हमें हमारी फेवर में होंगे, और उसको बड़ा प्रोपोगेट भी किया गया था। जो हुकूमत 8 जजेस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रही थी, वो 2 जजेस के फैसले को इतना बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रही थी, बड़ा हैरान कौन था, और वो भी जब वो माइनॉरिटी मतलब अक़लियती फैसला था। तो इससे उसका सिंपल उनकी मर्जी पता चल रही है कि जो हमारी फेवर में होगा वो आगे जाएगा। आप देखिएगा अगर यही ट्रेंड आगे रहा ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उन्होंने अपनी मर्जी का लगाया, अगरचे वो बड़े इंडिपेंडेंट और कंट्रोवर्शियल भी नहीं है। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट में जो जजेस है वो भी अपनी मर्जी के लगाएंगे, जो उनका जो तरीकाकार अभी तक जो है वो सामने आ रहा है। तो इसमें मेरे ख्याल में लंबी चौड़ी बहस की जरूरत ही नहीं है। हुकूमत अपनी मर्जी कर ही इसलिए रही है, हुकूमत मर्जी कर रही है। इमरान वसीम साहब ये बताएं कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने फैसला ये किया था कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो नहीं होंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी में जिसने बेंच फॉर्म करने हैं। और फिर कुछ खतूत के तबादले हुए थे, 11 एतराज़ात जस्टिस मुनीब अख्तर पर उठाए थे, इल्ज़ाम लगाए थे, ये कहा था कि इनका लहजा दुरुस्त है, इनमें ये भी गलत है, इनमें ये भी गलत है, इनमें ये भी गलत है। नए चीफ जस्टिस के आने के बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, 11 मिनट वो एतराज़ात नहीं ठहर सके। उनको बिल्कुल ऐसा तासुर है कि जैसे फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर को ले आए वापस कमेटी में। वो आपके ख्याल में इसका मतलब यह है कि जस्टिस याहिया आफरीदी ये समझते हैं कि जो इल्ज़ामात जस्टिस मुनीब अख्तर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने ख़त के ज़रिए लगाए थे वो तमाम के तमाम गलत थे?
साकिब बशीर साहब इजाज़त अगर हो तो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, आप तो नहीं, अगर आपको आफ्टर थॉट ना आए मेरी बात के दौरान नहीं, तो आप असल में वो नहीं जवाब दे नहीं रहे थे आप। नहीं, मैं जवाब दे रहा था, लेकिन आपको बीच में वो ख्यालात आ रहे थे तो मैंने कहा वो आपका ख्याल। जस्टिस बास मरतबा ऐसा होता है बंदे को जो सोच होती है वो थोड़ी देर के बाद निकल भी जाती है कि या मतलब भूल जाता है इंसान, तो मैंने कहा वो आप जल्दी से कहने आप इजाज़त है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आप इजाज़त है। आप काजी फाइज़ साहब की कोई मदह सराई में कुछ कहना चाहें वो भी कह सकते हैं। नहीं, मदह सराई तो मेरे ख्याल में आपसे बेहतर कौन कर सकता है। बाकी अगर मदह सराई पे बात करनी है तो बहुत लंबा टॉपिक हो सकता है। आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि ये एतराज़ात वाले, ये जो मुनीब अख्तर साहब पे एतराज़ था, ईसास भाई आपने जो सवाल पूछा है, बात ये है कि एक 63A का इशू था, 63A का फैसला भी आ गया। अब ये जो कमेटी बनी है ये उसी ऑर्डिनेंस के तहत बनी है, उसी ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी बना के ये चीफ जस्टिस का ही अख्तियार है या अफरीदी साहब का कि वो जिस मर्जी जज को नॉमिनेट कर दें। तो या अफरीदी साहब ने मुनीब अख्तर साहब को नॉमिनेट कर दिया, तो वो यही मैं पूछ रहा हूँ कि जो 11 एतराज काजी साहब ने किए थे कि ये इनको इस वजह से नहीं होना चाहिए इस कमेटी में, वो एतराजात नए चीफ जस्टिस ने तो एंटरटेन नहीं किए। इसका मतलब यही है। मैं ये कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस का अख्तियार है उसी सदारती ऑर्डिनेंस के तहत जिस पर इन जज साहबान ने उस कमेटी में बैठने से इनकार किया। अब वही ऑर्डिनेंस है, उस ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दी कमेटी है जिसमें ये जज साहबान आके उस कमेटी में शामिल हो गए हैं। अगर तो प्रिंसिपल स्टांस था फिर तो नहीं आना चाहिए था। कह लें जी आप जारी रखें सर। नहीं आप कहें नहीं वो आपको टोक नहीं रहे थे। ऐसे नहीं होता। देखिए उन्होंने दो मरतबा बात की है, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे मौका नहीं, उन्होंने मेरे से ये कहा कि मैं उनको भी मौका दूं। नहीं, मौका तो उनका आना ही, जब जारी बात है हम दो यहाँ पे बैठे हैं, एक की बात खत्म हो गई तो दूसरे की तो बारी आनी है। सही। अच्छा चले आप मुझे बताएं ना, इसका मतलब ये है कि जो नए चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो साबिक चीफ जस्टिस के एतराजात थे तो ये उनको एंटरटेन नहीं किया। दोनों जजेस का वापस कमेटी को ज्वाइन कर लेना बताएंगे। साकिब बशीर साहब से पूछें आपका सवाल। उनको मेरी बात के दौरान फिर कोई बात याद आई आप उनसे पूछें। साकिब बशीर साहब मेरा ख्याल है मैंने तो आपको मतलब इशारतन कहा था कि जाहिर सी बात है वो बात कर रहे हैं, वो तो कोई मसला नहीं है, वो उनकी राय है, वो कर सकते हैं। असल में जो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो ख़त था उस ख़त में 4 किस्म की चीज़ें थी कि उन्होंने कहा कि पहले तो फुल कोर्ट बुलाएं, अगर फुल कोर्ट नहीं बुलाते तो आप उसको मीटिंग में फुल कोर्ट मीटिंग में डिस्कस कर लें। तीसरा या चौथा उनका पॉइंट जो था उसी खत में, उसमें यह था कि आप पुरानी जो कमेटी है वो बहाल करें, पुरानी कमेटी बहाल करें। अब पुरानी कमेटी बहाल हो चुकी है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि वो उन्होंने कहा था कि अब ऑर्डिनेंस आ गया है तो ऑर्डिनेंस से बाहर आप नहीं जाना, पुरानी कमेटी बहाल करें, वो बहाल हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है इस पे तो अब फर्दर अब ऑर्डिनेंस चैलेंज भी हुआ है, फुल कोर्ट भी बैठी है या कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है, तो वो उसको देखेंगे ऑर्डिनेंस की क्या हैसियत है। बाकी जो है वो जैसे याया अफरीदी उनके पास ये ऑप्शन था कि अगर फर्ज करें ऑर्डिनेंस के मुताबिक ही देखें तो फर्स्ट सेकंड तो हो गए, थर्ड का उन्होंने ऑप्शन लेना था, तो थर्ड में वो तो नहीं लिखा हुआ कि आप मुनीर साहब को नहीं रख सकते या उनको माइनस करना ही करना है, तो उन्होंने कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। ये मौजूद था। इमरान वसीम साहब, आज जो फुल कोर्ट मीटिंग है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत, ये एक तासुर उससे मिल रहा है। एक तो जो उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग आए हैं, जो खबर सामने आई है वो ये कि जो मंसूर अली शाह साहब का मॉडल था केसेस जो की पेंडेंसी है उसको ख़त्म करने के लिए, उस सिस्टम को लागू किया जाएगा, फिर दिसंबर में दोबारा फुल कोर्ट इजलास होगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके तो मौक़िफ़ में, उनकी तो पोजीशन में कहीं कोई ऐसा तासुर नहीं है। जो हुकूमत की पोजीशन में मल्टीपल जो उनके वज़रा हैं वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेते नज़र आ रहे हैं इन 2 जजेस के खिलाफ। देखें हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, हुकूमत के क्या खदशात हैं या नहीं हैं, ये एक एनालिसिस हो सकता है। जहाँ तक बात है कि जब ये सदारती ऑर्डिनेंस आया था, मंसूर शाह साहब का लेटर आप निकाल के देखें, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा गया कि जब तक इस सदारती ऑर्डिनेंस का जुडिशियल रिव्यू नहीं होता या फिर इंतज़ामी साइड के ऊपर इस सदारती ऑर्डिनेंस का जायज़ा नहीं लिया जाता, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्हीं की बातों को रीआइट्रेट किया था जो मुनीब अख्तर साहब का लेटर आया था। बाकी आपका दूसरा सवाल क्या था? उसी सवाल का दूसरा जस्टिस मंसूर अली शाह की जो वीडियो लिंक आपने फुल कोर्ट की बात की। फुल कोर्ट के हवाले से जो मैं खबर देखता हूं, जो एलामिया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है, ये जो स्टैंड लेके लोग खड़े थे कि अगर जैसे याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लेते हैं तो बड़े ही कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस होंगे, खुद को एक्सपोज कर देंगे, 26वीं आईनी तरमीम के नवाजे गए चीफ जस्टिस होंगे, इनको रिजाइन कर देना चाहिए। और फिर ये भी बातें होती रहीं कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो 26 अक्टूबर को उनका अलग से सुप्रीम कोर्ट में तकरीबी हल बर्दारी होगी। कतई नज़र इस सारी बहस के आज के फुल कोर्ट के इजलास से खबर ये निकली है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एडमिट कर लिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम को भी मान लिया है
اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد فل کورٹ کے اجلاس میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی شرکت اور اپنا منصور علی شاہ صاحب کی شرکت، اس میں یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ اب مان رہے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس ہیں اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت سینئر پیونی جج کے طور پہ جو ہے یحییٰ افریدی صاحب کی کمانڈ کے نیچے جو ہے وہ اپنی سروسز جو ہے بطور جج جو ہے وہ دیں گے. صحیح. لاسٹ کوشچن ثاقب بشیر صاحب، کوئکلی مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ چانس موجود ہے اب کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ بھی آئینی بینچ کے سربراہ ہو سکتے ہیں، جو کہ حکومت نہیں چاہتی کہ ایسا ہو؟ حکومت تو بالکل نہیں چاہتی، بڑا واضح انہوں نے کر دیا ہے. اب جسٹس یحییٰ افریدی جو آج جس طرح اجلاس ہوا اس میں میٹنگ، اس میں وہ ویڈیو لنک پہ ذریعے آئے، پھر ان کا ہی دیا گا ایک جو 2023 کا اس حوالے سے مسودہ تھا کہ کیسے پینڈنسی ختم ہو، اس کو ڈسکس کیا گیا. پھر ایڈیشنل انہوں نے اپنی دی تجاویز بھی دیں. تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی تو بڑے جو ہے وہ مطمئن ہے اس حوالے سے، وہ کوشش بھی کریں گے، لیکن الٹیمیٹلی جوڈیشل کمیشن میں ووٹنگ ہونی ہے، اور ووٹنگ میں حکومت میرے خیال میں بہت کم فرق ہے اس میں. 6-6 کا اگر ووٹ بھی ہو تو اس میں سچویشن کس طرف جائے گی وہ قبل از وقت ہے اس کو بات. It all depends لیکن now. سپریم کورٹ میں جسٹس یحییٰ افریدی کی میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے 2-3 دن میں سٹیپس لیے ہیں تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ تو چاہیں گے کہ وہ آئیں اور جوڈیشل آئینی بینچز کے سربراہ بنے. اور میرٹ پر اگر بات کی جائے کہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کے سربراہ کون ہونے چاہیے، جہاں تو خود چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہونے چاہیے یا پھر جسٹس منصور علی شاہ ہونے چاہیے، جو بالکل میرٹ کی بات ہے. عام کسی بندے سے بھی جس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے جو لا نوئنگ ہو، کوئی وکیل ہو سپریم کورٹ کا، اس سے آپ پوچھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اپیرنٹلی جو ہے وہ اس وقت 6 ووٹ جو ہیں وہ حکومت کے پاس جوڈیشل کمیشن میں نظر آتے ہیں. اٹارنی جنرل آف پاکستان، فیڈرل لا منسٹر، 2 پارلیمنٹیرینز، ایک جس خاتون یا نان مسلم کو جو ہے وہ انہوں نے نومینیٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد پاکستان بار کونسل کا نمائندہ بھی. تو حکومت وہاں پر تو ڈومینیٹ کرتی ہے، اور اس میں ڈیسائسو ووٹ جو ہیں وہ 2 ہی ہو سکتے ہیں. ایک جسٹس امین الدین خان کا بطور 33rd موسٹ سینئر جج، اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کا، کیونکہ ایک ووٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ابھی جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ کا. وقت ختم ہو گیا. ثاقب بشیر صاحب، عمران وسیم صاحب، بہت بہت شکریہ. پاکستان کا عدالتی منظرنامہ پھر کروٹیں لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. حکومت جس نے یہ وعدے کیے تھے کہ تمام معاملات حل ہو جائیں گے 26ویں آئینی ترمیم میں، لگتا یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے لیکوناز یا کمیاں رہ گئی ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم لانی پڑے گی. لیکن اس 27ویں آئینی ترمیم کے لیے بھی کیا پروسیس وہی اڈاپٹ ہوگا جو 26 کے لیے ہوا تھا 26ویں کے لیے؟ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.